Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 2 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. This video is basically of student of Delhi University SOL student for all BCom program student. So let's start this video. एक बार फटाफट इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं. आज हम यूनिट 2 लेसन 3 बिजनेस इन्वायरमेंट लेसन 4 एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट. Learn about the external and internal factors that influence a business operation and how they interact. Recognize key characteristics. Identify the unique attributes of the business environment such as its dynamic nature and complexity. Third, analyze components. Break down the environment into micro, meso and macro levels to see how they impact business. Identify business friendly elements. Understand what makes an environment conducive to business growth and sustainability. Explore business ethics. Learn about ethical principles and how to implement them within a company. Understand social responsibility. Grasp the importance of corporate social responsibility and how it's benefit both society and business. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये सब बताया गया है कि क्या बिज़नेस इन्वायरमेंट है, मतलब वहाँ के जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बिज़नेस पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, करेक्टरिस्टिक, ठीक है, और बिज़नेस फ्रेंडली एलिमेंट क्या होता है, बिज़नेस एथिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट है बिज़नेस इन्वायरमेंट. द बिज़नेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल external and internal forces that influence a company decisions, strategies and performance. It's everything that surround a business and can either support or hinder its operation. बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो किस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपनी के डिसीजन पे, कंपनी के स्ट्रेटेजीज पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे. अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लेते हैं जैसे पॉलिटिकल. इट्स एक्सटर्नल फोर्सेस. समझ लो एक कोई गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो बिज़नेस के वो बिल्कुल अगेंस्ट है, तो ये इससे क्या होगा, ये हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा. तो यही बात होती है कि हमारे मतलब बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी. These are the factors outside a business that impact its ability to operate effectively. They include economic trends, government regulation, technological advancement and social changes. मतलब अब external forces में क्या आता है, जैसे कोई भी इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ गई, कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई, कोई भी सोशल चैलेंज चेंजेस आ गए, तो ये सब किस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, हमारे सीधा बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं. Key thinkers Barry M. Richmond and Melvin Coppen. They describe the business environment as a set of external factors beyond the control of any business. These factors shape the condition in which business operates. Gluck emphasizes the importance of monitoring external factors like financial market, governmental policies, and technological changes to identify opportunity and threats. This process helps business assess their strength, weakness, opportunity, and थ्रेड्स. मतलब इन्होंने क्या कहा है कि हमें मतलब महत्व तक रखनी चाहिए जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. Interconnected forces. The business environment is a mix of internal and external forces that are interrelated. A change in one area, such as a shift in economic policy, can have wider spread effects on other aspects like consumer behavior or industry competition. इन बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली मिक्सचर है किसका, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो ये क्या है, ये इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट. दीज इंक्लूड फैक्टर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी सच एज इट्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर. दीज आर इंटरनल फोर्सेज दैट द कंपनी कैन कंट्रोल. माइक्रो इन्वायरमेंट में पहली बात क्या आता है, इंटरनल फोर्सेज. और इंटरनल फोर्सेज में जो सीधा कंपनी से रिलेटेड हो. अब कंपनी से रिलेटेड क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के शेयर होल्डर. नेक्स्ट है मेसो इन्वायरमेंट. रेफर्स टू फैक्टर दैट अफेक्ट बिजनेस विद इन द सेम इंडस्ट्री सच एज सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. दीज आर एक्सटर्नल बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोर्सेज. मेसो में क्या आता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स.
Next है macro environment. Encompasses broader forces that affect all business across different industries. These include political, economic, social, technological, environmental and legal factors. Macro environment basically एक business के लिए नहीं, ये हर industries के जितनी भी अलग अलग industries होती है सब पे impact डालता है. सेकेंड चीज़ ये एक्सटर्नल फोर्सेस है. अब जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, अब जैसे इकोनॉमिक में कुछ मतलब रिसेशन हो गया, ठीक है, अब किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? सब इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रीज पे तो पड़ेगा नहीं. तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है और ये सबको अफेक्ट करता है जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं. नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर. द बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू इनोवेशन, मार्केट ट्रेंड्स एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस. बिजनेस मस्ट बी एगाइल टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस. डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक क्या होता है कि अब जैसे मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई तो बिज़नेस को भी उस टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना होता है, उसी तरह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा. ठीक है, अगर हम डायनामिक नेचर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारा बिजनेस पीछे रह जाएगा बहुत और ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी. प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज द इन्वायरमेंट इज़ वॉलेटाइल. हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है. तो इससे इन्वायरमेंट क्या वॉलेटाइल है, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, कोई से भी रेगुलेशन में, कोई से भी मार्केट कंडीशन में, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है. ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती. Complexity. The business environment is made up of many interconnected factors. Understanding the full impact of these factors requires in-depth analysis. Relativity. The effect of the business environment varies depending on the region, industry, and specific business. For instance, a policy change may benefit one industry while harming other. Next है components of business environment. Internal और micro environment. First है management. मतलब इंटरनल में क्या क्या, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर क्या क्या है, मैनेजमेंट होता है. दिस इंक्लूड्स द लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द कंपनी. पहली बात विद इन अ कंपनी होता है और लीडरशिप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस सब में इंक्लूड्स होता है. इफेक्टिव मैनेजमेंट इज क्रूशल फॉर नेविगेटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड स्टीयरिंग द कंपनी टूवर्ड्स इट्स गोल. सेकेंड है एम्प्लॉयज़. द वर्क फोर्स इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस. मतलब अगर एम्प्लॉय नहीं होंगे तो बिज़नेस कहाँ से चलेगा. तो एम्प्लॉय क्या है, एक बैकबोन है किसकी, बिजनेस की. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेस परफॉर्मेंस. जितनी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है और जितनी उनके अंदर प्रोडक्टिविटी होगी सीधा डायरेक्ट किसको इन्फ्लुएंस करेगी, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, बिजनेस की ग्रोथ पे. शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, दीज आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी. ऑब्वियस ही बात है, शेयर होल्डर ये ऑनर होते हैं कंपनी के, क्योंकि ये अपनी कैपिटल लगाते हैं. ठीक है, और ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिटर्न मिले किस पे, अपनी जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी कंपनी के अंदर. नेक्स्ट है मैसो इन्वायरमेंट. सप्लायर. बिजनेस रिलाई ऑन सप्लायर फॉर द मार्केट एंड सर्विसेज, मटेरियल एंड सर्विसेज नीडेड टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट. अ रिलायबल सप्लाई चेन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑपरेशन. सेकेंड, कस्टमर्स. द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू मीट कंज्यूमर नीड्स. मतलब बिजनेस का गोल क्या होता है कि हम अपने कंज्यूमर की नीड पूरी कर सके, उनको सेटिस्फेक्शन हो सके. Next, intermediaries. These are the agent or firms that help distribute products from the manufacturer to the customer. Efficient intermediaries can enhance a company's market reach. Competitor. Other business in the same industry pose challenge by offering similar product or services. Staying competitive requires innovation and strategic planning. Next, stakeholders. These includes anyone affected by the company's operations such as the local community, employees, customers and suppliers. Managing stakeholder relationship is a for long-term success. Next, macro environment. First, demographic factors. They refer to the statistical characteristic of the population such as age, gender, income and education. Changes in डेमोग्राफिक कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड एंड द बिजनेस स्ट्रेटेजी. अब सपोज करो किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई, ऑब्वियस ही बात है वो अपनी डिमांड भी बढ़ाएगा. तो इससे क्या होगा, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो मार्केट की डिमांड पे इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर है, एज, जेंडर, इनकम एंड एजुकेशन. नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स. These includes the overall economic condition like GDP, inflation rates, interest rates and unemployment. Economic stability is crucial for business growth. मतलब क्या के इकोनॉमिक के फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी बिजनेस पे. GDP हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट. सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स. सोशल वैल्यूज, कल्चरल नॉर्म्स एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर. बिजनेस मस्ट अलाइन देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज विद द सोशल ट्रेंड्स. बिजनेस मार्केट में वही लाता है जो
बेसिकली ट्रेंड्स वगैरह में होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी और डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। मतलब टेक्नोलॉजी का फैक्टर भी बहुत अफेक्ट करता है किसी एक बिजनेस पे। इन्वायरमेंटल कंसर्न, बिजनेस आर इंक्रीजिंगली रिक्वायर्ड टू कंसीडर देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग वेस्ट, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, political legal factors. Government policies, laws, and regulations shape the business landscape. Compliance with legal standard is mandatory, and business must stay informed about changes in the regulatory environment. मतलब business को हमेशा पता रहना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या नई पॉलिसीज़ आ रही है, क्या नई लॉज आ रहे हैं, क्या रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो बिज़नेस को इस पे रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट इज़ वन दैट सपोर्ट्स द इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी नीडेड फॉर द बिजनेस टू थ्राइव। बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमें सपोर्ट करती है हमारे बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट में, बिजनेस की ग्रोथ में और सस्टेनेबिलिटी में। की एट्रीब्यूट्स: ऑपरेशनल सर्टिनिटी, बिजनेस नीड अ स्टेबल इन्वायरमेंट वेयर दे कैन प्लान एंड एग्जीक्यूट देयर स्ट्रेटजीज विदाउट फेसिंग अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन। बिजनेस को हमेशा से एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि वह अपने गोल को और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके बिना किसी डिस्ट्रप्शन के। Opportunities for growth. The environment should offer opportunity for expansion, innovation and market entry. मतलब क्या opportunity environment क्या ऑफर अपॉर्चुनिटी करती है? एक्सपेंशन, इनोवेशन एंड मार्केट एंट्री। सिक्योर ट्रांजेक्शन, अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर कंडक्टेड बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एसेंशियल फॉर गेनिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सिक्योर इन्वायरमेंट क्या कंडक्ट करता है बिजनेस में, ताकि वो गेन कर सके कस्टमर का ट्रस्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। टैक्सेस एंड कंप्लाइंस, अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट फीचर ट्रांसपेरेंट, fair and reasonable tax policies that do not overburden business. Simplified tax compliance procedures encourage business to operate within the law. मतलब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या फीचर चाहता है? ट्रांसपेरेंट, फेयर और रीजनेबल टैक्स पॉलिसीज़ होनी चाहिए और जिस पे ओवरबर्डन ना हो बिजनेसेस पे। रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग अ बिजनेस एंड ऑब्टेनिंग नेसेसरी सर्टिफिकेशन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एफिशिएंट. दिस reduces entry barriers and encourages entrepreneurship. Special economic zones. Special economic zones are designated area that offer tax incentives, relaxed regulation, and other benefit to attract investment. They are designed to boost economic activity and industrial growth. Special economic zone किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें और हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड यूटिलिटी is crucial for business operation. Good infrastructure support efficient production, distribution and service delivery. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है एक बिजनेस इन्वायरमेंट में। Regulation. Consistent, clear and fair regulation are for ensuring that business operated in a predictable environment. Excessive or arbitrary regulation can stifle business activity. मतलब रेगुलेशन क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फेयर रेगुलेशंस होनी चाहिए जिससे हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। Training program. Government and private sector initiative that provides training and skill development help create a capable workforce. This enhances productivity and innovation. Subsidies and incentive. Financial support from the government such as subsidies, grants or low interest loan encourages business investment and growth, particularly in critical और emerging sector. मतलब अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, जैसे कि कोई सब्सिडीज़ हो गया, लो इंटरेस्ट लोन हो गए, तो बिजनेस को बहुत हेल्प मिलती है ग्रोथ में। Ethics in business. Business ethics refers to the moral principles and standard that guide behavior in the world of business. Business ethic क्या सिखाता है कि हमारे अंदर क्या ऐसी moral values होनी चाहिए ताकि हम अपना जो behavior है हम अपना बहुत अच्छा कर सके as a business में. Ethical business practices build trust with customer, employees and other stakeholder. अगर ethical business है हमारा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? ट्रस्ट इंक्रीज होगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ और अदर स्टेक होल्डर
क्या इंपॉर्टेंस है? एथिकल बिजनेस आर मोर लाइकली टू सस्टेन लॉन्ग टर्म सक्सेस। ऑब्वियस ही बात है, जितना बिजनेस हमारा एथिकल होगा हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज दे फूस्टर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब लॉयल्टी, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट, trust and loyalty. Ethical practices help build trust with customer, employees, and business partners. This trust leads to customer loyalty, employee satisfaction, and strong business relationship. अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है हमारी वर्ल्ड में, ठीक है। अ कमिटमेंट टू एथिक्स इनहेंस अ कंपनी रेपुटेशन, मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू कस्टमर, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। मतलब हमारी इन्वायरमेंट में एक बहुत गुड इमेज बन जाती है। लॉन्ग टर्म विएबिलिटी। एथिकल कंपनीज आर बेटर इक्विप्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज दे अवॉइड द पिट फॉल्स ऑफ अनएथिकल बिहेवियर सच एज लीगल पेनल्टीज, स्कैंडल्स एंड बॉयकॉट्स। मतलब इससे क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है हमारी से बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि ना अगर कोई हमारी कंपनी में आएगा तो वो एथिक्स देखता है कि कोई इसने कोई पेनल्टीज़ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बहुत बैड इम्पैक्ट डालती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट, इंटीग्रिटी। एक्टिंग विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन ऑल बिजनेस डीलिंग। मतलब किसी से हम बिजनेस डील कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव है हम ऑनेस्ट रहने चाहिए, फेयरनेस, ठीक है। इंटीग्रिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड फोस्टर्स अ पॉजिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। ट्रांसपेरेंसी, बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट कंपनी ऑपरेशन, डिसीजन एंड फाइनेंशियल डीलिंग। अगर हम किसी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तो हमारा मेन फर्स्ट मोटिव है कि हमें उनके साथ ओपन रहना है। हमें हमारी जो कंपनी के ऑपरेशंस है, डिसीजंस हैं, उन्हें हमें अपने सब ओपन करके बतानी है। Fairness, treating all stakeholders including customer, employees and suppliers equitably. Accountability, taking responsibility for the consequences of business actions and decision. Accountability promotes trust and ensure that ethical standards are upheld. Next is steps to develop business ethics in a company. Establish a code of conduct. A formal document that outlines the ethical standard and expectations for behavior within the company. It serve as a guideline for all the employees. ठीक है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एथिकल स्टैंडर्ड होंगे। कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। लीडर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू एथिक्स बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड इन्फोर्सिंग एथिकल स्टैंडर्ड। देयर बिहेवियर सेट द टोन ऑफ फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। Employee training. Regular training sessions should be conducted to educate employees on the company's ethical standard and how to apply them in various situations. Monitoring and enforcement. Implement system to monitor compliance with ethical standard and address any violations. This could include regular audits, a whistleblower policy, and disciplinary action for breaches. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। मतलब बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द आइडिया दैट बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी बियॉन्ड सिंपली जनरेटिंग प्रॉफिट। दिस इंक्लूड एथिकल प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट स्टीवर्डशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। CSR एंड बिजनेस सक्सेस। CSR का होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हेंसेस अ कंपनीज रेपुटेशन, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। कंपनीज दैट आर सोशली रिस्पॉन्सिबल आर ऑफन more successful in the long term growth. Reason for corporate social responsibility. क्या CSR क्या करती, क्या रीज़न होता है? इम्प्रूव करती कंपनी की रेपुटेशन। कंपनी दैट इंगेज इन CSR एक्टिविटीज़ आर व्यूड मोर फेवरेबल बाय द पब्लिक, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर ब्रांड इमेज एंड कस्टमर ट्रस्ट। बेसिकली ट्रस्ट वगैरह में पैसा लगाना। इन्हेंस कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू सपोर्ट बिजनेस दैट अलाइन विद देयर वैल्यूज एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबींग। अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वांट टू वर्क फॉर कंपनी दैट आर एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। CSR कैन activities can increase job satisfaction and reduce turnover. नेक्स्ट टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013, द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन। Legal mandate. In India, the Companies Act 2013 mandate that certain companies engage in CSR activities. कंपनीज एक्ट में मैंडेट है कुछ कंपनीज को CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी। दिस लेजिस्लेशन रिक्वायर्स कंपनी टू एलोकेट अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट टू सोशल इनिशिएटिव। मतलब इस एक्ट में क्या है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वह अपना कुछ पोर्शन प्रॉफिट का CSR एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगी। द एम इज़ टू इंश्योर दैट बिजनेस कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इन्वायरमेंटल वेलफेयर। मतलब क्या इंश्योर करते कि बिजनेस कहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, पॉवर्टी में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इन्वायरमेंटल
सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब हमें अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन जगहों पे देना पड़ता है, मैंडेट है ये. Properties of corporate social responsibility. While some aspects of CSR are legally mandated, business of gone beyond the minimum requirement. This commitment reflects a company's value and dedication to social good. मतलब इससे क्या रिफ्लेक्ट पड़ता है कि कंपनी एथिक है, ठीक है, बिजनेस एथिक्स है और ये डेडिकेशन है सोशल गुड के लिए. इंटीग्रेशन विद बिजनेस ऑपरेशन. CSR इज नॉट जस्ट अ साइड एक्टिविटी, इट शुड बी इंटीग्रेटेड into the core business strategy. This ensure that social responsibility is a part of company day-to-day operation and decision-making process. Social responsibility components. Companies should minimize their environmental impact by reducing waste, conserving resources, and adopting sustainable practices. This includes efforts to lower carbon emission and manage waste responsibly. Ethical labor practice. Treating employees fairly and with respect is a key component of CSR. This includes ensuring safe working conditions, fair wages, and equal opportunity for all employees. Community engagement. Business should actively participate in community development by supporting local initiative, charitable activities, and volunteer work. Engaging with the community help build stronger relationship and create a positive impact. Summary. Comprehensive. The business environment is a complex and dynamic mix of internal and external factors that influence a company's operation. Business must understand and adapt to these factors to thrive. Ethics and CSR. Ethics and social responsibility are critical for building trust, enhancing reputation, and ensuring long term success. Companies that prioritize ethical behavior and contribute positively to society are better positioned for sustainable growth. मतलब वही हम भी ऊपर जो पढ़ के आए कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस के एथिक्स क्या है और CSR क्या है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ क्या है. तो यहाँ पे वो सब की बात की गई है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 3. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप. Gain a through understanding of what entrepreneurship entails, including its meaning, significant, and various form. Recognizing the importance of social entrepreneurship. Learn about social entrepreneurship, how it differs from traditional entrepreneurship, and why it is crucial in addressing social challenges. Government support for MSME. Understand the strategies and initiatives that government use to support MSME, micro, small, and medium enterprises, which are key drivers of economic growth. Appreciating the role of entrepreneurship in economic development. Comprehend how entrepreneurship contribute to the overall economic development of a country by fostering innovation, generating employment, and increasing national income. So अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप. द टर्म एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्डर विच मीन्स टू अंडरटेक. बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक. An entrepreneur is a someone who initiate, organize, and manage a new business venture, taking on most of the risk and reward associated with it. Entrepreneur क्या होता है? जो कुछ स्टार्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है कोई न्यू बिजनेस वेंचर. बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है और रिवॉर्ड भी होता है. तो एक टाइप का एक न्यू बिजनेस एंटिटी स्टार्ट करता है अपनी स्किल्स से. Evolution of entrepreneurship. Historically, entrepreneurship was primarily associated with starting new business. सिंपल सी बात कहिए कि स्टार्ट करना न्यू बिजनेस. However, modern entrepreneurship involves much more than just business creation. Today, entrepreneurs are seen as innovators and problem solvers who introduce new ideas, technologies, and services that drive economic progress and social change. अगर हम आज के एंटरप्रेन्योर को देखें तो बहुत सारे नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं ताकि जिससे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व हो पा रही है. न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज. इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक की प्रोग्रेस हो रही है और सोशल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. Significance of entrepreneurship. Entrepreneurs play a vital role in the economy by bringing new product and service to market, creating job, and contributing to economic growth.
Their willingness to take risk and innovate lead to technological advancement, improve productivity and better standard of living. मतलब जो एंटरप्रेन्योर है हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज आ रही है, इससे क्या हो रहा है, जॉब क्रिएशन बढ़ रही है और इससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, जॉब क्रिएशन, मतलब एक तो जॉब का कारण बन गए हैं, जॉब निर्माण जो कहते हैं. Entrepreneurs are crucial for job creation. By starting and expanding their business, they provide employment opportunity which help reduce unemployment rates. जब जैसे अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो जाएंगे, बेरोज़गारी कम हो जाएगी. इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन एट द फोर फ्रंट ऑफ इनोवेशन. दे डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स, मीट कंज्यूमर नीड्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ. इनोवेशन क्या होता है, कुछ मतलब कुछ अच्छी अपनी समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंस से कुछ चीज़ नई क्रिएट करना, जिससे क्या है हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके, कंज्यूमर की नीड्स फुलफ़िल हो सके और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत इम्प्रूव हो सके. चेंज एजेंट्स, एंटरप्रेन्योर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ चेंज बाय चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग. मतलब ये इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ को करने का कोई नया तरीका निकालते हैं. देयर इनोवेशन कैन डिस्टर्ब मार्केट, मतलब इन्होंने मार्केट को प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब कर दिया. लीडिंग टू न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और ये क्या ला रहे, न्यू इंडस्ट्रीज़ ला रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल रहे हैं. Social contribution, beyond economic benefits, entrepreneurs contribute to society in various ways. They pay taxes that support public services, engage in philanthropy and often implement corporate social responsibility programs that benefit communities. Social contribution में इनकी बहुत help हो रही है. Economic growth, entrepreneurs stimulate economic growth by increasing productivity, generating wealth, and creating new market. Their activity lead to a higher gross domestic product एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब एंटरप्रेन्योर का हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है. Competencies for entrepreneur. Conceptual skills. Entrepreneur must be able to quickly understand complex situation and identify connection between different factors. This skill is essential for problem solving and strategic decision making. मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझ पाते हैं और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स के बीच में, ठीक है. जो इनकी स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और एक डिसीजन मेकिंग के लिए. Technological skills. In today digital age, entrepreneur need to be comfortable with new technology. Entrepreneurs किस में काम करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी में काम करने में ही वो बहुत comfort रहते हैं. Whether it is leveraging social media for marketing or adopting new tools for operation, technological skills are crucial for staying competitive. Human relation. Successful entrepreneurs build and maintain positive relationship with a wide range of stakeholders, including employees, customers, investors, and the public. Strong interpersonal skills are essential for leadership and team management. जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा वो ना कि एक बिज़नेस की ग्रोथ पे देखेगा, बल्कि वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी देखेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ, ठीक है, लीडरशिप में रह के काम करना, टीम मैनेजमेंट में रह के काम करना. Communication skills. Clear and effective communication is a virtual for entrepreneurs, whether pitching ideas to investor, negotiating with supplier, or marketing to customers. The ability to convey idea persuasively can make a significant difference. मतलब communication skills उनकी बहुत ज़्यादा strong होनी चाहिए, clear होनी चाहिए, जिससे अगर वो किसी इन्वेस्टर्स को आइडिया बता रहे हो, ठीक है, सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, तो बहुत ईजिली अच्छे से कर सके. उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. डिसीजन मेकिंग. एंटरप्रेन्योर ऑफन फेस डिफिकल्ट डिसीजन विद अनसर्टेन आउटकम. स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग ऑप्शन, असेसिंग रिस्क एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अंडर प्रेशर. Managerial skills. Managing resources, whether financial, human, or material, is critical part of entrepreneurship. Entrepreneurs need to plan, organize, lead, and control their business operation efficiently to achieve their goals.
Time management. Entrepreneurs juggle multiple responsibilities, and effective time management is key to ensuring that tasks are completed on time, which boost overall productivity. मतलब उनको अपना टाइम इस तरह मैनेज करना होता है कि जो उन्होंने टास्क बनाया है वो कंप्लीट हो जाए एकदम टाइम पे. Stress management. The entrepreneur journey is often stressful with high level of uncertainty and pressure. मतलब ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होता है. इंडिविजुअल स्किल्स. These include qualities like self confidence, persistence, and creativity. Personal attribute can greatly influence an entrepreneur ability to overcome challenges and seize opportunities. Opportunity exploration. Entrepreneur must be proactive in identifying new opportunity for growth and innovation. This involves constantly scanning the market and being open to new ideas and trend. Unity and leadership. एकता होनी चाहिए एक बिजनेस के अंदर. ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स रिसोर्स एंड अलाइंग देम टूवर्ड्स अ कॉमन गोल इज की लीडरशिप ट्रेट फॉर एंटरप्रेन्योर. दे मस्ट इंस्पायर एंड यूनाइट देयर टीम्स टू वर्क टूवर्ड्स शेयर ऑब्जेक्टिव. Digital literacy. In the modern business environment, understanding and utilizing digital tools and platform is essential. Entrepreneurs need to be adept at using technology for everything from market research to customer engagement. Next topic है functions of an entrepreneur. Innovation. Entrepreneurs are often innovators who create new product or process. मतलब ये क्रिएट करते हैं कुछ नया प्रोडक्ट. ठीक है. इनोवेशन इज सेंट्रल टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वॉल्व्स टर्निंग आइडियाज इनटू मार्केटेबल गुड्स और सर्विसेज. इनोवेशन क्या करते हैं, ये आइडियाज़ को अपने कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, मार्केटेबल गुड्स और सर्विसेज के अंदर. रिस्क टेकिंग. Entrepreneurship involves taking calculated risk. Entrepreneur must be willing to invest time, money, and resources into ventures that have uncertain outcomes. जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करता है, मतलब उसको खुद भी मतलब नहीं पता होता कि जो उसका आउटकम आएगा वो सर्टेन आएगा कि असर्टेन आएगा, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. और रिस्क टेकिंग इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस. मतलब कहा जाता है हाई रिस्क हाई प्रॉफिट. जितना ज़्यादा रिस्क लोगे ग्रोथ और सक्सेस उतनी ज़्यादा होगी. तो क्या बोला है, रिस्क टेकिंग इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस. मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. Entrepreneur must effectively manage and organize their business operation. This includes planning, coordinating activities, and ensuring that all aspects of the business are aligned with overall goals. Business judgment. Entrepreneurs need to make critical decisions about what products or service to offer, how to produce them और for whom. एंटरप्रेन्योर के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि क्या प्रोडक्ट और सर्विस होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए. दिस डिसीजन रिक्वायर केयरफुल कंसिड्रेशन ऑफ मार्केट डिमांड, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिशन. ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, मार्केट की डिमांड क्या है, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिशन पे. Type of entrepreneurship. Nature based entrepreneurship. Individual entrepreneurs. These are solo entrepreneur who start and run business on their own. मतलब सिंगल पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस. ठीक है. दे आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू एग्जीक्यूशन. वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आइडिया जनरेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक. Institutional entrepreneurs. Those entrepreneurs are part of larger institution organization that support to promote entrepreneurial activities. They may have access to more resources and network than individual entrepreneur. मतलब कैसे स्टार्ट करना किसी लार्जर इंस्टीट्यूशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और वो सपोर्ट और प्रमोट करते हैं इन एक्टिविटीज़ को. Gender based entrepreneurship. Male entrepreneur. Traditionally, entrepreneur has been male dominated, but this is changing as more women enter the field. मतलब पहले कहा जाता था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एकदम मेल ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है. अब वुमेन एंटर हो रही है इस फील्ड के अंदर. फीमेल एंटरप्रेन्योर्स. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर इंक्रीजिंगली मेकिंग देयर मार्क, ऑफन ब्रिंगिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेस टू बिजनेस. फीमेल एंटरप्रेन्योर भी आ रही हैं इस फील्ड के अंदर. लोकेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप. Urban entrepreneurs. These entrepreneurs operates in cities where they can access larger market, better infrastructure and more resources. मतलब
ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये कहाँ ऑपरेट करते हैं, सिटीज़ में, ठीक है, टाउन्स वगैरह में, जहाँ पे ये बहुत इजीली मार्केट को एक्सेस कर पाते हैं और इनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकते हैं. रूरल एंटरप्रेन्योर्स ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज. These entrepreneurs often focus on local resources and may have to deal with challenges like limited access to market and infrastructure. मतलब ऐसे जो ऑपरेट करते हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, उनका बस उनका फोकस रहता है कि लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं उन पे ही फोकस रहता है, और उनके पास तो एक लिमिटेड एक्सेस होता है मार्केट का, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना कुछ खास नहीं होता. साइज बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप. Small scale entrepreneurs. These entrepreneurs run small business with limited capital and production capacity. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है. दे ऑफन फोकस ऑन नीक मार्केट्स और लोकल कम्युनिटी. इनका फोकस सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ पे रहता है, ये ग्लोबली नहीं सोचते. लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स मैनेज बिगर ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट. अब लार्ज स्केल है तो कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, और इस बिज़नेस का मेन होता है कि ग्लोबल लेवल पे करना. Generation based entrepreneurship. Fresh generation entrepreneur. These are young innovative entrepreneurs who are oftenly early adopter of new technology and business models. मतलब young generation ऐसे start कर रही है. Old generation entrepreneur. These entrepreneurs tend to rely on traditional method and may be more resistant to change, preferring established practices. मतलब traditional method से start करना. The importance of entrepreneurship. Job creation. Entrepreneurship is major driver of job creation. मतलब इसके आने से जॉब की क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है. By establishing new business, entrepreneur provide employment opportunity that reduce unemployment and support economic stability. इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई है और सपोर्ट मिलता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को. Innovation. Entrepreneurs are crucial for innovation. They bring new ideas to life, developing product and services that improve quality of life and drive economic growth. Social impact. Entrepreneurs often address social challenges through their business activities, leading to positive change in society. Their innovation can improve education, healthcare, and other critical areas. Improve standard of living. Through job creation and innovation, entrepreneurs contribute to higher income levels and improve living standards for individuals and communities. Promotion of research and development. Entrepreneurs invest in research and development to create new products and services. This investment not only benefit their business but also contribute to broader economic growth and technological advancement. So next topic है entrepreneurship process. First, idea generation. The first step in the entrepreneurial process is generating idea. मतलब पहला step क्या है कि idea को generate करना. Entrepreneurs identify potential business opportunity by recognizing unmet needs or problems in the market. Second है idea evaluation. अब एक बार idea जनरेट हो चुका है तो अब उसको इवेल्युएट करने की बारी है. वंस आइडियाज आर जनरेटेड, एंटरप्रेन्योर्स evaluate them to determine their feasibility. This involve analyzing the market potential, resources required and risk involved. इसके अंदर क्या क्या वो देखते हैं कि मार्केट में इस आइडिया की कितनी पोटेंशियल है और कितना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और कितना रिस्क इन्वॉल्व है. नेक्स्ट है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर सिलेक्टिंग आ आइडिया, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज द नेसेसरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल एंड मटेरियल टू ब्रिंग द आइडिया टू लाइफ. फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितना फाइनेंस, कितनी ह्यूमन कैपिटल और कितने मटेरियल की ज़रूरत है. First, next है business structure. Entrepreneur decide on the structure of the business considering factors like scale, ownership and legal form. This decision impact how the business will operate and grow. कि मतलब business का क्या structure होना चाहिए. Location selection. Choosing the right
location is crucial for success of a business. Entrepreneur consider factors like market access, cost and availability of resources when selecting a location. लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा जो उस लोकेलिटी में हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे तो हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो हमें एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत हो, वहाँ पे उसकी डिमांड बहुत हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। Effective financial planning ensure that the business has the necessary funds to operate and grow. Entrepreneurs need to manage their finance carefully to maintain cash flow and profitability. नेक्स्ट है मार्केट एंट्री। फाइनली एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च देयर प्रोडक्ट और सर्विस इनटू मार्केट। मतलब अब मार्केट में एंट्री करना बाकी है, तो एंटरप्रेन्योर लॉन्च कर देते हैं अपना प्रोडक्ट किसके अंदर, मार्केट के अंदर। दिस इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग मार्केट स्ट्रेटेजीज, बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड कॉन्टीन्यूसली अडेप्टिंग टू मार्केट फीडबैक। मतलब फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। Social entrepreneurship refers to the practice of starting and running ventures that aim to solve social problems or meet social need rather than solely focus on profit। मतलब क्या बात की गई है कि हमें लोगों की नीड्स को, कि हमने जो अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कहीं उससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ठीक है, और उनकी नीड्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही। सोशल entrepreneurs use business principle to develop innovative solution that create social value। जैसे हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब बेसिकली ये एक सोशली हेल्प वगैरह। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी पे अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए रखना। Examples of social entrepreneurship includes company that provide affordable clean energy solution, business that offer microfinance service to the poor और initiative that promote sustainable farming practices। तो ये सब examples हैं। Features of social entrepreneurship: unlike traditional entrepreneur who primarily seek financial profit, social entrepreneur prioritize their mission to create social impact. Their ventures are designed to address specific social problems such as poverty, education और health care। अगर कोई एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर है तो उसका मेन फोकस होगा पोवर्टी पे, एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे। इनोवेटिव सॉल्यूशन: सोशल एंटरप्रेन्योर्स ऑफन डेवलप क्रिएटिंग एंड इनोवेटिव अप्रोचेस टू सॉल्व सोशल चैलेंजेस। बेसिकली वो ऐसे आइडियाज़ क्रिएट करता है, इनोवेट करता है, जिससे सोशल की जो चैलेंजेस हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। वो किस किस न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है, बिजनेस मॉडल यूज़ करता है। सस्टेनेबिलिटी: for social entrepreneurship to be effective, it must be sustainable. This means that social ventures should be financially viable and able to continue their operation and impact over the long term. Scalability: successful social venture have the potential to scale, meaning they can grow and expand their impact to reach more people or address additional social issues। क्वालिटीज़ ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एम्पैथी: सोशल एंटरप्रेन्योर possesses a deep understanding of the communities and individual they aim to serve. Empathy allow them to connect with the needs and challenges of their target population and design solutions that truly make a difference। Innovation: creativity is a hallmark of social entrepreneur. They think outside the box to find new way to address social issues। मतलब इनकी क्या क्वालिटी होती है, ये ऐसे आइडियाज़ इनोवेट करते हैं जिससे सोशल की जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल हम सॉर्ट आउट कर सकें। रेजिलेंस: the path social entrepreneurship is often challenging with many obstacles and setbacks. Leadership: social entrepreneurs are leaders who inspire and mobilize others to join their cause. They build team, create partnership, and rally support from stakeholder to achieve their social objective। मतलब ये लीडर जो इंस्पायर करते हैं, किस किस को ज्वाइन करते हैं, ये टीम की तरह काम करते हैं, पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। आइडेंटिफाइंग सोशल इश्यूज: द प्रोसेस बिगन विद आइडेंटिफाई अ सोशल प्रॉब्लम और नीड दैट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन। मतलब पहले इनका काम होता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, पहले वो निकालते हैं और क्या सॉल्यूशन होगा। Developing solution: once a social issue is identified, social entrepreneur develop innovative solution that can effectively address the problem। अगर उन्होंने एक बार सोशल में क्या मतलब क्या इशू है, क्या दिक्कत है, अगर उन्होंने ये एक बार
डेवलप कर लिया तो वो अब क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे वो प्रॉब्लम को ईजिली एडवर्स इफेक्टिवली सॉर्ट आउट कर सके प्रॉब्लम को। Resource mobilization. Social entrepreneur must secure the necessary resources to implement their solution. This include financial resources, human capital and partnership with other organization और stakeholder। मतलब वो देखते हैं क्या क्या resources की need है इस solution को sort out करने में। Implementation. With resources in place, social entrepreneurs implement their solution. This involves launching the venture, delivering the product or service, and continuously monitoring progress to ensure that the intended social impact is achieved. Evaluation. Finally, social entrepreneurs evaluate the outcome of their initiative. They assess the effectiveness of their solution in addressing the social issue and make adjustment as need to improve impact and sustainability. ठीक है, अब मार्केट में हम देखते हैं हम कि हम उस सोशल इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME are classified based on their investment in equipment, machinery and annual turnover. MSME को जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इक्विपमेंट के बेसिस पे, मशीनरी के बेसिस पे और इनकी एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे। सिग्निफिकेंस। MSME आर दी बैकबोन ऑफ मैनी इकोनॉमिक्स। ये बैकबोन होते हैं इकोनॉमी की, कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। दे आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स एंड रेजिलेंट इकोनॉमी। मतलब ये बहुत एसेंशियल होती है डेवलपमेंट की इकोनॉमिक के लिए। India's MSME industry contribution to GDP. India's MSME sector is a key driver of economic growth. मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, contribute significant to country GDP. It plays a vital role in industrialization and modernization, particularly in rural areas. Basically ये क्या रोल प्ले करता है, कहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, कहाँ पे रूरल एरियाज़ में। Diversity of MSME. The MSME sector in India encompassing a wide range of industry including manufacture, services or trade. This diversity allows the sector to serve different market and customer needs. Challenges faced by MSME. Despite their importance, MSME often face challenges such as limited access to finance, inadequate infrastructure, and regulatory hurdles. Addressing these challenges is crucial for the sector growth and sustainability. मतलब क्या क्या challenges face करने पड़ते हैं, रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं होता, तो ये सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इन द MSME। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट MSME। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव किसके लिए बनाए, MSME के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, सब्सिडीज एंड ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर investment in MSME is also encouraged. Policies are in place to make it easier for investors to fund and support MSME growth, recognizing the sector potential for high returns and significant social impact. मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कर रही है वैसे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, MSME में। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इज क्रूशल फॉर द ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME. The government and private sector initiative aim to help MSME adopt modern technologies, improving efficiency and expanding their market reach. मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का एम है कि MSME अडेप्ट कर ले मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, इम्प्रूव एफिशिएंसी और एक्सपैंड हो जाए ये मार्केट। मेजर MSME सपोर्ट स्ट्रेटजीज। Credit availability. Ensuring that MSME have access to affordable credit is a key strategy. Government programs provide loans and financial products tailored to the need of small business. Technology upgradation. Support for technology upgradation help MSMEs stay competitive. This includes subsidies and training programs that
इनेबल MSME टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे इंक्लूड क्या होती है, सब्सिडीज़ होती है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं MSME के लिए, जिससे क्या जो MSME सेक्टर में अडॉप्ट कर सके न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। स्किल डेवलपमेंट, डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ द MSME वर्क फोर्स इज क्रिटिकल फॉर इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। मार्केट एक्सेस, facilitating market access for MSME is essential for the growth. This includes helping MSME reach new customers both domestically and internationally through trade fair, online platform and export assistance programs. मतलब MSME को मार्केट एक्सेस करने के लिए जितनी ज़्यादा मार्केट एक्सेस होगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इसमें हेल्प क्या करती है कि न्यू कस्टमर हो बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल, ठीक है। रेगुलेटरी सपोर्ट, simplifying the regulatory framework for MSME reduces the bureaucratic burden and market and make it easier for small business to start and operate. This includes streamlining license process, reducing compliance cost and offering tax incentive. Next summary. Entrepreneurship is a powerful force driving economic growth, innovation, and job creation. Entrepreneurs play a crucial role in transforming ideas into reality and addressing social needs. अभी हम पढ़ के आए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इट emphasizes the importance of creating social value alongside economic value. MSME, these are vital for to the economy, particularly in developing countries. They provide employment, contribute to GDP, and foster industrialization. Overall, understanding entrepreneurship and the role of MSME in economic development is essential for fostering a vibrant and dynamic economy. Entrepreneurs, whether focused on profit or social impact, are key to driving progress and innovation in society. So basically यहाँ पे वही अभी जो हम बात की गए हैं तो यहाँ पे ऊपर इनकी समरी दे दी गई है। So thank you guys for watching this video, and do like, share this video, and subscribe our YouTube channel Delhi Scholar for such further amazing content.